Dr. Rajha, Director, Bhaddal Institutes, to request the... Open. I invite our chief guest, academic advisor and former Vice Chancellor of Guru Nanak Dev University, Amritsar, Dr. S.P. Singh, Director of School of Management Studies, Professor G.S.R. I invite the Head of Department of Business Administration for the award of degree to the students. Administration and authorize you to wear the robe ordained as the insignia of this degree. Amrinder Singh, Gurpreet Kaur, Hari Krishna, Ishani Kashyap, Jaspreet Kaur. Dr. J.S. Kanwar, Associate Director of School of Engineering and Technology, for the award of degrees. I invite the Head of the Department of Computer Application for the award of degree to the students. Sir, I present the students of Computer Applications of batch 2008-11 for the award of MCA degree. By virtue of the power vested in me by Vice Chancellor of Punjab Technical University, Jalandhar, I admit you to the degree of Masters in Computer Application and authorize you to wear the robe ordained as the insignia of this degree. Pooja Thakur, Aman Sharma, Amita Sharma, Dinesh, Neelam Kumari, Neha Jain, Nidhi Kondal, Preeti Saini, Suman Sharma, Sumit, Anish. Thank you, Madam Ashu. I request the students of School of Architecture to kindly line up. Thank you, Dr. J.S. Kanwar. May I call upon Associate Rector of School of Architecture, Architect Jeet Kumar Gupta, and Head of Department for the award of degrees to the students of architecture. And authorize you to wear the robe ordained as the insignia of this degree. Gagandeep, Jaspreet, Gagandeep, Robin, Tanur, Tapas, Guru Nanak University, Director Technical Campus, Dr. Rajha, Associate Directors, School of Engineering and Technology, faculty, students,
distinguished guests, ladies and gentlemen, it's indeed a great pleasure for me to deliver the convocation address on the occasion of the 10th convocation of Bhattal Institute, Ropar. I am truly privileged to be in your midst on the IIT Bhattal Technical Campus. Engineer Gurcharan Singh Ji, a great social reform become a reality. I am sure that the legacy of this visionary will be seen as an inspiration to all those graduating today. I compliment Madam Kulwinder Gurcharan Singh, whose tireless efforts have given her vision and foresight to trigger setting up of this campus. Jasrotia, Gurcharan Singh Tanjal, Harish Kumar, Harpreet Kaur, Paramjot Kaur, Sonam Garg, Tanveer Singh and Vikas Bansal. Thank you, sir. Thank you, Mr. Jitendra Pal Singh. May I request kindly escort our chief guest, Honorable Dr. R.S. Nirjal, for his presidential remarks. I also request the dignitaries to kindly be seated. अध्यक्ष श्रीमती कुलविंदर गुरचरण सिंह, वरिष्ठ एकेडमिशियन प्रोफेसर एस.पी. सिंह, प्रोफेसर बेंस, सहयोगी संकाय सदस्यगण, छात्र छात्राओं, देवियों एवं सज्जनों, मैं सबसे पहले आपसे हिंदी में बोलने की अनुमति मांगूंगा। आशा है आप इसे अन्यथा ना लेंगे। वैसे बहुधा पिछले 20 साल से मैं हिंदी में बोलता रहा हूँ और मुझे लोग सहन कर लेते हैं, तो अब आदत भी हो गई। दूसरी बात यह है कि मैं रिटायर्ड ही नहीं, रिटायर्ड कई बार रिटायर्ड हो चुका, और फिर उसके बाद वो TYRE वाला टायर्ड करके लोग फिर आगे बढ़ा देते हैं और फिर रिटायर्ड हो जाता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ देख चुका हो जिंदगी में, उसको बहुत भाषण देने की आदत नहीं करती, कुछ आपसे बातचीत करना चाहता है, कुछ अपनी बातें कहना चाहता है। मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करूँगा कि कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले मैं अपने मित्र श्री गुरचरण सिंह जी की स्मृतियों को नमन करना चाहूँगा, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। जिन्होंने संस्थान शुरू किया था, मुझे उस समय की बहुत अच्छी स्मृतियाँ हैं। मैं उस समय AICT में था और इस तरह के विजन से, उनके विजन से मैं बहुत अच्छी तरह परिचित था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन शायद नॉर्थ इंडिया में उस बार अप्रूव की गई थी, भत्तल को सबसे अधिक सीटें दी गई थी, और इसका कोई कारण नहीं था, सिर्फ श्री गुरुचरण जी का व्यक्तित्व, उनकी सरलता, उनकी शिष्टता और उनका जो दृष्टिकोण था जो इसको शुरू करने के पीछे था। एकमात्र वो विजन था जिससे हम बहुत प्रभावित हुए थे, सभी लोग बहुत प्रभावित हुए थे, नहीं किसी और तरीके से अप्रूवल दिए जाया करते थे। उसके पश्चात भी वो मेरे संपर्क में रहे और जैसा हर भले आदमी के साथ होता है, उनका दुखद निधन हुआ और अब श्रीमती कुलविंदर जी बहुत ही निष्ठा के साथ इस मिशन को चला रही हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो एक सुभद्रा कुमारी चौहान की लाइन है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो हम यही कहेंगे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो भद्दल वाली रानी। और जिस तरह से उन्होंने अपना सब कुछ लगा करके इस संस्थान को खड़ा करने में किया है, उसके पीछे निश्चित रूप से कुछ आदर्श रहे हैं जिसका कुछ परिचय मुझे है और मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूँगा।
अब बातचीत करना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने पता नहीं कितने लंबे, बहुत लंबी अवधि के बाद, बहुत प्रयत्नों के बाद, बड़ी मेहनत की होगी। एक आदमी जब शुरू से पढ़ना शुरू करता है, मैं अपने टाइम की याद करता हूँ, तो पढ़ना सबसे ज़्यादा बोरिंग काम होता है, मुझे ऐसा लगता था। वैसे दूसरी बात है कि ऐसे ही पीएचडी तक करना जाना पड़ा, लेकिन कोई बहुत प्रेजेंट वर्क नहीं है। बच्चों को आजकल के ज़माने में 7 बजे उठा के स्कूल भेजना, और देखते हैं कि हम बहुधा क्या होता है कि हम शुरू से ही जो अपने सपने होते हैं, जो अपनी अपूर्णताएं होती हैं, माँ बाप जो अपने आप खुद नहीं बन सकते या जो खुद सपने लिए होते हैं, जिन्हें पेरेंटल एस्पायरेशंस कहूँगा मैं, उनको अपने बच्चों के ऊपर थोपते रहते हैं कि तुम्हें ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, और इतना कंपटीशन है, उतना कंपटीशन है, ये करना होगा। और कभी कभी अपनी इच्छा के विपरीत भी, मैं खुद स्वयं स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर कुछ भी नहीं बनना चाहता था। जो बनना चाहता था वो नहीं बना, जो नहीं बनना चाहता था वो बन गया। पता नहीं हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि बहुत ही साधारण परिवार की है, बहुत गरीब परिवार की, जिसे 2 समय रोटी ना मिलती हो, ऐसी पृष्ठभूमि से मैं आया हूँ। मैं जब पैदा हुआ था, माँ की मृत्यु हो गई थी और पिताजी आज़ादी के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल चले गए थे। फिर एक अनाथ का जो जीवन गुजरता है, उससे गुजर के आगे आना पड़ा। तो कितने सपने हम लोग अपने आप खुद रखते हैं। हमें तो सपने पालने की भी आज़ादी नहीं थी, कोई सपने ही नहीं थे। एक बार मुझसे बन्नारी अम्मा इंस्टीट्यूट है तमिलनाडु में, उन्होंने पूछा कि आपकी प्लानिंग क्या है। मैंने कहा भाई, हम जिस परिवेश से आ रहे हैं वहाँ शाम तक का खाना मिल जाए काफ़ी होता है, हम लंबी प्लानिंग करने की कभी सुविधा ही नहीं रही हमें कहाँ ये सुविधा थी कि हम प्लानिंग करते। कभी कोई अरमान नहीं पाले, कभी कोई सपने नहीं लिए। आजकल हर किसी पर, हम तो बड़ा अच्छी आज़ाद जिंदगी चली, जिधर को कोई प्रयोग किया, कभी फौज में चले गए, पाकिस्तानियों के पास ऐसी गोली उस समय नहीं बनी थी जो मार सकती, तो वापस आ गए। और वापस आने के बाद जो सोचा कि बनाते हैं कुछ कहने के बाद, और इसमें व्यक्ति बनता है, देखता है वो। हम ये समझते हैं कि बच्चे समझते नहीं, समझते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाते हैं, सुबह से ही माँ बाप अपने बच्चे को कुछ बनाने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, इसकी कोई कल्पना नहीं की जाती। फिर वो ये भी देखते हैं कि किस तरह से कि आज फलाना प्रोग्राम है, पिताजी से 15 रुपए लाओ, आज ये प्रोग्राम है 25 रुपए लाओ। अब मेरे तो पोता पढ़ रहा है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि डीपीएस जेब में से किस तरह से पैसे निकालता है आपकी जेब में। और फिर वो कहते हैं कि अब हम इन्हें आदर्श नागरिक बना रहे हैं। अरे भाई, ये शुरू में ऐसा जानते हो कि आप पैसे के साथ किस तरह का क्या कुछ कर रहे हो, कैसे एक फंक्शन होगा उसके लिए इस तरह की ड्रेस बनाओ, वो ड्रेस ऐसी होगी कभी दोबारा उसे पहन नहीं सकते, फूल जलूल टाइप की। और ये बच्चे जानते हैं कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो हमें तितली और जो कुछ भी बनाया गया था, हाथी और जो बनाया गया था, इस देश का कुछ नहीं होने वाला, वो भी जानते हैं इस बात के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे विद्रोह करते हैं। मेरा अपना पोता है, उसके सब कामों में, 10 साल का है, उसका सब कामों में विश्वास है, पढ़ने लिखने में बिल्कुल विश्वास नहीं। और उसके माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं। उसका बाप प्रोफेसर है, वो भी IIM में, कि इसका क्या करेगा। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, उससे कहा कि तुम ये नहीं बनोगे, उसने कहा मुझे नहीं बनना। उसने कहा तुम ये भी नहीं बनोगे, उसने कहा मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मुझे नहीं बनना। कई बार उसे जब दोनों माँ बाप समझा रहे थे, उसने कहा मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना, नहीं बनना चाहते तो। उसने कहा क्यों, मैं अपने दादू की तरह वाइस चांसलर बन जाऊंगा। तो कितने टूटे हुए सपनों को अपने कंधों पर लाद कर, कभी ये करके कभी वो कर कर, कितने प्रयत्नों के बाद आपने ये डिग्री ली है। और पूरी जिंदगी भर हमारी एक बड़ा अजीब सा समझौता चलता रहता है। एक तरफ हमें हर आदमी सिखाता है कि सक्सेसफुल होने के ये गुर हैं, देखो भाई मैं बता रहा हूँ, ये करो वो करो वो करो। कितनी किताबें, अगर आप जाएंगे किसी भी एयरपोर्ट पे भी जाएंगे तो सबसे ज़्यादा किताबें आजकल इस बात की बिक रही कि आप सक्सेसफुल कैसे होगे, बिना ये बताए कि सक्सेसफुल की परिभाषा क्या है, कि भाई आप इसे सक्सेस समझते क्या। जैसे आप समझते हो कि आप बड़े सफल हो गए, तो सफलता का मतलब है कि कैसे पैसा कमाओगे, कैसे क्या करोगे, ये सक्सेस की सारी स्टोरी बताते रहते हैं। और हम अपने परिवार जीवन की एक एक पगडंडी से चलते हुए, एक एक सीढ़ी उलांघते हुए आते हैं। परिवार में भी हमें सक्सेस होने के बतेरे फॉर्मूले बताए जाते हैं, लेकिन पास में कुछ और भी होता है। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए कि जो भावनाशीलता हमें आती है, जो भावनाएं आती हैं, वो हमारी माँ की देन होती हैं।
जो माँ होती है वो जितनी भावुक होंगी उतने ही भावुक आप बन जाते हैं। और अनुशासन जो है वो पिता के हाथ में होता है, जितना पिता आपको सिखा देंगे उतना ही अनुशासन आएगा। जो अपने परिवार में अनुशासित है वो कॉलेज में भी अनुशासित है, समाज जीवन में भी अनुशासित है। ये IIT खड़गपुर में से लेकर के हर जगह का मेरा अपना अनुभव है कि अनुशासन होता है। लेकिन अनुशासन के और भावनाओं के अतिरिक्त जो एक और व्यक्तित्व का भाग होता है जिसे हम संस्कार कहते हैं, जो जीवन मूल्य कहते हैं, वो जीवन मूल्य दादा दादी से आते हैं। वो दादा दादी की जो कहानी होती है उनके साथ हम जीवन मूल्य सीखते हैं, वो बहुत कुछ बताते हैं। आजकल मैनेजमेंट में, मैंने भी मैनेजमेंट में भी PhD कराई है, केस स्टडीज की जाती हैं। अरे जितने महाभारत हैं ये कुछ है, ये केस स्टडीज तो हैं। और केस स्टडीज भी उन लोगों की है जिसका अपना अलग सत्य था। हर किसी का सत्य अपना अलग था और उस सत्य के साथ वो लड़ रहे थे। भाई नीति से जो है वो ये कहते हैं कि विल टू पावर जो होती है व्यक्ति की साइकिल डाल दिया कि जीवन के मूल्य उससे बहुत बड़े होते हैं, उससे कुछ और भी होते हैं, है ना। कर्ण जो है आप जानते हैं, कर्ण के पास जब कुंती गई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई तुम इन्हीं के भाई हो जिनके विरुद्ध लड़ रहे हो और चलो हमारे साथ आ जाओ तो तुम्हें सब राज भी हो जाएगा, युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है, आप लोग तो सब कोई चंद्रवंशी है, कोई सूर्यवंशी है, मेरा वंश मुझसे आरंभ हो रहा है। अगर मैं कोई अनएथिकल काम करूंगा तो मुझे इतिहास क्षमा नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि उससे भी अधिक कुछ बात है। तो जब वो युद्ध हो रहा था और उन्होंने ये वचन दे दिया था कुंती को कि तुम्हारे 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा, तो बार बार उनके हाथ में आते थे, वो तलवार उठाते थे, छोड़ देते थे, फिर तलवार उठाते थे या तीर उठाते थे, छोड़ देते थे और व्यंग कर देते थे कि महाराज युधिष्ठिर बहुत मुलायम हो, धर्म कर्म की बातें करो, कहाँ युद्ध में आ गए। वो बड़े अपमानित महसूस करते थे। जब ये देखा बार बार तो शल्य ने कहा कि भाई ये क्या तमाशा है कि तुम वीरों को लाते हो और छोड़ देते हो, ऐसे कैसे युद्ध जीतोगे? ये 4 आदमियों को तुमने 4 बार तो छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा मैं ये छोड़ नहीं रहा हूं, ये फूल फेंक रहा हूं कहीं के लिए। वो है कि ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के। ये 4 फूल प्रच्छन्न दान है किसी महाबलिदानी के। समझोगे नहीं इसको शल्य, ये कर्तव्य नादानों का है, ये खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जिंदगी में बहुत से ऐसे उद्देश्य होते हैं जो जीत से बहुत बड़े थे। भाई क्या हो गया था परम श्रेष्ठ गुरु गोविंद सिंह को कि सब कुछ त्याग दिया, अपने 4 पुत्र तक बलिदान कर दिए। क्या बात थी, आराम की जिंदगी जी सकते थे, छोटा सा समझौता करना था धर्म के विरुद्ध मुगलों के साथ। ये हम करते रहे हैं। भगत सिंह को क्या हो गया था कि फांसी पर चढ़ गए थे, आज समझ में नहीं आएगा। आज जैसा वातावरण चल रहा है, कोई समझाने लगे भगत सिंह की बात तो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की समझ में तो आने वाला नहीं है जो काम करते हैं। जरा आप लोगों में बहुत होंगे, किसी मार्केटिंग मैनेजर को नहीं समझा सकते कि भाई ये क्या क्यों जो सुबह शाम तक झूठ बोलता है। मेरा कहने का तात्पर्य आपसे ये निवेदन है बहुत अच्छी तरीके से कि जिंदगी में हम एक दुविधा में रहते हैं, एक भीष्म दुविधा हमें हमेशा छाई रहती है ना, कि हृदय प्रेम को चढ़ा कर्म को भुजा समर्पित करके मैं आया था कुरुक्षेत्र में तो हृदय में भर के, सोचा था मिट गया द्वंद्व पाकर ये न्याय विभाजन, पता न था है कठिन स्नेह का कहीं कर्म से बंधन। ये धर्म कहते हैं, स्नेह कहते हैं, भावनाएं कहते हैं, जीवन मूल्य कहते हैं, इनका बंधन बड़ा कठिन होता है, नहीं छोड़ता चाहे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि घर ही थोड़ा ये सब बताते हैं भाई तुम्हें कौन सा कितना पे मिल गई। मैं अक्सर मुझे चूंकि कम से कम AICT के दौरान 300-400 इंजीनियरिंग कॉलेज घूमने का तो मौका मिला होगा, वो सब लोग ये बताते थे कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं इतने के का ऑफर मिला है। भाई के अतिरिक्त भी कुछ और होता है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ इन्हीं सीमाओं में सिमटी हुई नहीं होती है। कहीं एक भाई होता है, कहीं एक माँ होती है, कहीं कोई प्रतीक्षा करता, घर में कोई और व्यक्ति होता है, और फिर पास में कितनी संस्थाएं, एक गुरुद्वारा भी पार में होगा जिसमें ये सुबह से शाम तक शब्द ज्ञान में बताया होगा कि वरदेह सिवावर मोहे ये शुभ कर्मन थे मैं कभी न टरूं। पहले शुभ कर्मन से न टरूं की बात है, और जब हरी से जाए लड़ूं निश्चित कर अपनी जीत तब करूं जब शुभ कर्मन के बारे में मैं निश्चित कर सकूं कि इनसे कभी नहीं डरूंगा। और अपने जो कुछ भी कहा गया है शब्द ज्ञान में, उसे प्रार्थना के रूप में नहीं कहा गया, एक जीवन दर्शन के रूप में कहा गया। तो ये जीवन दर्शन भी कहीं कुछ संस्थाएं हमें सिखा रही हैं, और नतीजा ये है कि हम बटे हुए व्यक्ति की तरफ से रहते हैं।
एक वो जो सक्सेस पाना चाहता है किसी कीमत पर, और एक वो जो अंदर से आत्मा की तरह गहराइयों से कहीं कुछ भावनाएं कह रही हैं कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य इससे कुछ बड़ा है। अब आपको ये चुनना है कि आपको क्या करना है। मैं खास तौर से मैनेजमेंट के लोगों से, इन तमाम से कहता हूं कि कितने समझौते करके आगे बढ़ना चाहते हो ये तय कर लो आज, बाद में तय नहीं होता। जिंदगी ऐसी चीज है कि अगर एक दो समझौते कर लिए तो फिर समझौता ही करता रहता है आदमी, रोज जीते रहे रोज मरते रहे। हम जब व्यवसाय में जाते हैं और कुछ नुकसान नहीं होता, मैं बता देता हूं, अगर आप कभी ऐंठ भी जाएं थोड़े बहुत दिनों की परेशानी होती। मैंने कितने इस्तीफे दिए हैं, कोई खास बात नहीं हुई, सब फिर भी ठीक ठाक आगे बढ़ते रहे, और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार समझौता कर लिया अगर आपने जिंदगी में अपने जीवन मूल्यों से, अपनी गरिमा से, तो फिर समझौते करने की कोई सीमा नहीं रहेगी। इसलिए आज जब आपने ये डिग्री ली है, ये ग्रेजुएशन लिया है, तो ये निर्णय कर लीजिए अपने मन में कि किस कीमत पर आपको सक्सेस चाहिए, उसके लिए क्या कीमत देंगे। देखिए गीता जो है ना, ये युद्ध क्षेत्र की रचना नहीं है। मैंने युद्ध देखा है, अच्छी तरीके से देखा, और एक नहीं वीक तक देखा है, अच्छी लड़ाई देखी है। उसमें ये फुर्सत ही नहीं होती कुछ भी सोचने की कि भाई मैं इन्हें जरा थोड़ा मॉरल लेक्चर दूं कि भाई देखो घबराओ मत, जरा मैं तुम्हें बता दूं कि कर्मण्येवाधिकार